Class 10, so we are going to start a new chapter, that is heredity and evolution. Okay, so first in this chapter we are going to read about some basic things like what is heredity and some terms that is closely related to heredity. Okay, so let's start. Okay, heredity. Simply, it is the process of transmission of characters from parents to offspring. Clear? So, heredity, it is the transmission. What is transmission? Transfer. Transfer of characters from parents to offspring. Clear? पेरेंट्स से बच्चों को कैरेक्टर्स आता है. लाइक यू माइट हैव हर्ड दिस थिंग रेगुलरली दैट योर फेस लुक्स लाइक योर फादर, योर नोज लुक्स लाइक योर मदर, योर वॉकिंग स्टाइल, योर हाइट, योर कलर looks like your father. Some of your other characters look like your mother. Means why do they tell you that some characters of your parents are prevailing in you? Because those characters from the parents have transmitted into you, from parents to the children. This is the process of heredity. And this heredity, okay, the transfer characters through genes. Okay, or we can simply tell that gametes play a very important role in this. Gametes are sex cells. As they are cells, they contain nucleus. Nucleus contains chromosomes. Chromosomes contain genes. Clear? So simply I can tell gametes play an important role for the transmission of hereditary information. Clear? Hereditary information means whatever characters your parents have, that is to be transferred to you or the offspring. That is called as hereditary information. And this hereditary information is present in gametes of parents. Clear? Actually the information is in the gene, which is inside the chromosome, which is inside the nucleus, which is inside the gametes. So I tell this thing that information is present in the gamete of the parents. Clear? Done. The word is now defined. Next, let's move on to some of the other terms, related terms. Okay, before that I can give you a small example of how the thing transfers. Male gamete, female gamete, fertilization, zygote. This male gamete has some characters, female gamete has some characters. Half of its character comes here, 3 characters of male gametes moves to the zygote, half of the female moves to zygote. Means their characters are coming here. Remember, their characters are coming here. Getting me? Now, as because male gametes contain the, what I could say, the characters of parents, through the gametes, the characters transferred to the new offspring. Okay? Done. Now, a new term, variation. The word variation, you might be very familiar to this word. Very frequently you have heard it. Variation simply means changes. Variation simply means changes. Or I can say the differences in characters in terms of this chapter. If I go, variation means the difference in character, okay, among the individuals of a species is called variation. Difference in character. What character? Any kind. The skin color, body shape, height, weight, chest size, okay, head size, color of your iris, the texture of your voice. If you compare your friends, your classmates, you'll find that you don't look alike. You among your 10 friends, you have your distinguished identity because of your distinct face, distinct hair color.
distinct face shape, face cut. That means you have changes. Some of you have straight hairs, whereas others have curly hairs. Some of you have long hairs, others have short hair. Some of you have fair complexion of skin, others have dark complexion of skin. Don't tell white people, black people. This is not the way to explain the skin color. It is fair complexion and dark complexion. Clear? So these are the difference in character. Like I have a dark complexion, you have a fair complexion. We differ in our character. This is a variation between you and me. One more variation, the example of variation is given here. You can see here it is your earlobe. क्लियर? किसी किसी का ये कान का जो ईयर पिन्ना, बाहर का पार्ट पिन्ना है, पिन्ना का नीचे वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं ईयर लोब. ये ईयर लोब झूल रहा है, देखो इस इंसान का, लेकिन इस लड़की का अटैच है. फ्री ईयर लोब, अटैच्ड ईयर लोब, एक ही पार्ट है दोनों में, लेकिन तुम देख सकते हो दोनों में वेरिएशन है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है. दिस इज व्हाट वेरिएशन मीन्स. क्लियर? एंड वेरिएशन, it is mainly seen to a larger extent in sexual reproduction. Like the last chapter I have told you, sexual reproduction consists of two parents where two different characters combine. दो अलग अलग कैरेक्टर मिलेंगे तो यहाँ पे नया कैरेक्टर का जन्म होगा, यानी चेंज आएगा ही आएगा. क्लियर? एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट है, चेंज आना मुश्किल है. डीएनए कॉपिंग बता रहे थे तुम लोग, डीएनए कॉपिंग होता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता, 100% नहीं होता, कहीं ना कहीं 0.5% रह जाता है. और ये 0.5% भी इम्पॉर्टेंट है, दो हम ये 0.5% को नोटिस नहीं कर सकते. क्लियर? सो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन कैन बी सीन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? As like if you go in asexual reproduction, if you are looking at different plant, rose plant, तुमने 100 ठो रोज प्लांट लगाए हैं, एक पेड़ से काट के तुमने 10 ठो लगाया, 10 ठो ब्रांचेस काट लिए तुमने बड़ा सा पेड़ का, रोज प्लांट का, 10 ठो प्लांट लगा दिए. तुम देखोगे 10 ठो प्लांट जब ग्रो करेंगे उसके बाद तुम उनमें वेरिएशंस ढूंढ भी पाए ना, बहुत कम होगा, काफ़ी कम. ठीक है? लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर तुम देखते हो ना कि ह्यूमन में, डॉग में, हाँ ह्यूमन का एग्जाम्पल लो, इजी होगा समझना. तुम अगर एक ही पेरेंट के दो बच्चों को देखोगे, दोनों पूरा अलग अलग दिखते हैं, उनमें बहुत सारा वेरिएशन आता है, बहुत सारा वेरिएशन. क्लियर? दिस इज अ प्रूफ ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअल is a variation occurs in large number in sexual reproduction as compared to asexual reproduction. Okay, now the next term is accumulation of variation. Accumulation of variation. What do you mean by accumulation? जमा होना. Variation changes means variations जमा होता रहता है, जमा होता रहता है. क्या है ये? Let me give you an example. सपोज ए के पास एक खास तरह का कैरेक्टर है, बहुत सारा कैरेक्टर होगा, मैं एक बता रहा हूँ. ए के पास खास तरह का कैरेक्टर है कि ए टॉल है, ये कैरेक्टर है उसका, याद रखो. नेक्स्ट, ए से पैदा हुआ बी, मीन्स ए का बच्चा बी, तो टॉल तो इसके पास भी आएगा, बी के पास, चलो आ गया. इसके साथ साथ इसको एक और नया वेरिएशन मिला कि इसका ही कैन टॉलरेट हीट. सपोज ही कैन टॉलरेट हीट. सपोज सी के और भी कैरेक्टर में एक एक बता रहा हूँ, सिर्फ सी, तो इसके पास तो टॉल रहेगा, टॉलरेशन ऑफ हीट रहेगा, और एक ही हैव द एबिलिटी टू फ्लाई. सपोज क्लियर? सी का बच्चा डी, इसके पास तो टॉलनेस का है, टेम्परेचर को, हीट को रेजिस्ट करने का कैरेक्टर भी है, प्लस फ्लाइंग का कैरेक्टर भी है, प्लस ये पानी पे चल सकता है, वॉक इन वाटर. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है?
तो तुम देखो, तुम ये 4 केस में तुम देख रहे हो कि कैसे वेरिएशंस नया नया आया और वो वेरिएशन जमा होते गया। टॉल था, टॉल और हीट टॉलरेंस आ गया, फिर टॉल, हीट टॉलरेंस और फ्लाइंग आ गया, टॉल, हीट टॉलरेंस, फ्लाइंग एंड वॉकिंग ऑन द वाटर भी आ गया। तो यहाँ पे तुम 4th स्टेज पहुँच रहे हो, तुम देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशंस आ गया है। पहला ऐसा वेरिएशन नहीं है, अलग कैरेक्टर्स होगा, इसके पास कान है, नाक है, ये है, वो है, सबके पास है, ठीक है। लेकिन एक नया कैरेक्टर टॉलरेंस यहाँ पे आया था, एक और नया यहाँ पे आया हीट टॉलरेंस, एक और आया फ्लाइंग का, एक और आया वॉकिंग ऑन वाटर का। तुम देखो पहले एक नया कैरेक्टर था, अभी 4 नया कैरेक्टर है। मीन्स डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन इज एक्यूमुलेटेड इन द करंट जनरेशन। तुम्हारे पास जो अभी जो तुम्हारा कैरेक्टर्स है, तुम अगर देखोगे पहले के जो हमारे मतलब होमोसेपियंस का स्पेसीज जो पहले पुराना था बोल रहे थे, उनके फेस में हेयर था, हमारे पास नहीं है। उनके कान बहुत बड़े थे, हमारे पास नहीं है। मीन्स वेरिएशन उनके में भी आया, धीरे धीरे आया, धीरे धीरे आया, धीरे धीरे, और हम आज एक प्रॉपर शेप में दिखते हैं। तुम आज से 5000 साल पहले भी अगर कोई डाटा निकालोगे, यहाँ पे आर्टिकल्स होगा, फोटोज़ होगा पहले के इंसानों का, तो उनके पास कान था, हमारे पास भी कान है, नाक था, नाक है। लेकिन तुम मतलब ये कैरेक्टर्स है, वो सुन सकते थे, हम भी सुन सकते हैं, वो बोल सकते थे, हम भी बोल सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे नया नया कैरेक्टर आया जो हमको मिला। बहुत पहले शायद इंसान बोल नहीं पाता होगा, धीरे धीरे बोल पाया नया कैरेक्टर, धीरे धीरे सुन पाया, वो अभी भी है हमारे पास है, धीरे धीरे टेस्ट कर पाया, धीरे धीरे फील कर पाया, धीरे धीरे बाल आए, धीरे धीरे फेस का हेयर जो है वो कम हो गया। तो अभी करंटली हमारे पास बहुत सारा कैरेक्टर है। हम सुन सकते हैं, खा सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग सकते हैं, सोच सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं। ये सब कैरेक्टर ही तो है। और एक साथ ये सारा कैरेक्टर कहीं पे नहीं मिल गया था। धीरे धीरे डेवलप होते हमारे पास आज 100 कैरेक्टर्स हैं। सो वी आर द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। सो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन सिंपली मीन्स द चेंजेस that are produced in the successive generations get accumulated. सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर्स जनरेशंस है, इनका सबका कैरेक्टर्स जो है वो एक्यूमुलेट होता गया, एग्रीगेट, जुड़ते गया, मिलते गया, रहते गया। क्लियर? एक और एग्जाम्पल बुक में दिया गया है। एक बैक्टीरिया था ए, उसके 2 डॉटर बैक्टीरिया हो गए बी और सी। सी के पास एक नया कैरेक्टर डेवलप हुआ, है ना? क्या कैरेक्टर? कि ये नॉर्मल टेम्परेचर लाइक बैक्टीरियाज अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 डिग्री का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। इसके पास नया एक कैरेक्टर आ गया, 50 डिग्री सह सकता है। अब इसके जो बच्चे आएंगे डी और ई, डी के पास भी कैरेक्टर होगा, ई के पास भी होगा। क्या पता ई के पास और नया कैरेक्टर आ जाएगा, तो ई के बच्चे के पास 50 डिग्री का हीट टॉलरेंस प्लस एक नया कैरेक्टर, मीन्स सी का कैरेक्टर इसको ही मिल गया। धीरे धीरे इसके बच्चे होंगे, आगे के जनरेशन्स में ये कैरेक्टर भी पाया जाएगा। मीन्स ये कैरेक्टर उनके बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, जम गया, रह गया, फिक्स हो गया। क्लियर? This is called as accumulation of variation. So, is this variation very important? Means varieties of variations. Yes, it is very important. ये सोचो, अगर इसके पास 50 डिग्री का हीट टॉलरेंस नहीं हो पाता, इसका भी 40 होता, धूप होता, दोनों मर जाते, स्पेसीज खत्म। 50 है बोल के ये शायद मर जाएगा, ये नहीं मरेगा, आगे बढ़ेगा। सो ये सर्वाइवल के चांस को बढ़ाता है, एडाप्टेशन सिखाता है। वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडाप्टेशंस एंड हेल्प इन मोर एडाप्टेशंस। अपने एनवायरनमेंट सराउंडिंग के हिसाब से कैरेक्टर बदल सकता है और ये आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को सस्टेन करना, टैकल करने में हेल्प करता है। क्लियर? सो वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट because they increase the chances of survival of a species.
क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म, क्रोमोसोम्स। तुमने पढ़ा है इसके बारे में, थोड़ा और डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्रोमोसोम्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम? CID देख लो भैया, सब समझ आ जाएगा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, which is present in the nucleus of a cell, we know that, and it is formed of DNA and special proteins which carry genes. Clear? This chromosome is a thread-like structure which is present in the nucleus of a cell, formed of DNA, and it carries genes. Clear? Let me explain. ये क्रोमोसोम के अंदर हमको मिलेगा DNA, DNA के अंदर रहेगा जीन, जीन के अंदर छुपा बैठा है हमारा कैरेक्टर। क्लियर? ध्यान से भाइयों और बहनों देख लो, क्रोमोसोम्स कहाँ है? सेल के अंदर। क्लियर? क्रोमोसोम कहाँ है? सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर DNA, मीन्स क्रोमोसोम बना है DNA से, DNA के अंदर जीन, जीन के अंदर कैरेक्टर। इतना लंबा लाइन है। क्लियर? अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं और थोड़ा अच्छे से समझाने का कोशिश करूं, क्रोमोसोम बनता है क्रोमाटिन से। क्लियर? क्रोमाटिन आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वी नो दैट। क्रोमाटिन बनता है न्यूक्लियोसोम से। न्यूक्लियोसोम इज अ प्रोटीनियस बॉडी। न्यूक्लियोसोम्स जुड़ जुड़ के क्रोमाटिन बनता है। न्यूक्लियोसोम किससे बनेगा? DNA एंड अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन। लंबा लंबा कहानी जा रहा है, सोच लो सर क्यों पढ़ा रहे हो उतना सारा, जान लिए रहो, जीके है, अगर याद रख पाओ तो ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं रखे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुम क्रोमाटिन जानते थे, बस दो नया वर्ड जाने, न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन। मैं सिंपली बता रहा हूँ, DNA और हिस्टोन दोनों मिलके जुड़ जाते हैं। DNA और हिस्टोन दोनों जुड़ जाएंगे तो न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियोसोम मिलने से, जुड़ जाने से क्रोमाटिन बनाएंगे, और क्रोमाटिन फ्यूज होगा तो क्रोमोसोम बनाएगा। जीन कहाँ है? इसी DNA के अंदर है। क्लियर? समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स मूव टू जीन। जीन को जरा अच्छे से समझो, क्योंकि इस चैप्टर में सिवाय जीन के और कुछ नहीं है। अगर तुम जीन को जिन मान के घिसोगे ना तो चमत्कार हो जाएगा। लाइन समझ में आए तो हंस लेना, नहीं आए तो तुम मूर्ख हो बेटा। ओके, जीन, व्हाट डू यू मीन बाय जीन? एक्चुअली जीन इज अ यूनिट ऑफ DNA. It is a unit of DNA. Clear? And it governs the synthesis. What it does? मेन काम क्या है जिनका? It governs the synthesis of some special protein, okay, that controls कैरेक्टर। थोड़ा जीन का डेफिनेशन में मैं चेंज लाऊंगा। ओके, जीन क्या है? तुम जानते थे जीन DNA का यूनिट है और इसमें कैरेक्टर छुपा हुआ है, ठीक। लेकिन एग्जैक्टली जीन छुपा के नहीं रखता। कोई भी एक कैरेक्टर को अगर कंट्रोल करना है या वो कैरेक्टर को उसे रखना है तो उसके लिए वो क्या करेगा? स्पेशल प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन ही उस कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। क्लियर? जीन इज अ यूनिट ऑफ DNA which govern, मतलब कंट्रोल, गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ सम स्पेशल प्रोटीन। सबके लिए अलग अलग प्रोटीन है। ओके, हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग प्रोटीन। हेयर कलर के लिए मेलानिन, हेयर स्ट्रेंथ के लिए केराटिन, ये अलग अलग प्रोटीन, सबके लिए अलग अलग तरह का चीज़। ओके, सो आई वाज टेलिंग जीन इज द यूनिट ऑफ DNA which governs the synthesis of protein that controls the character. जीन क्या करेगा? कुछ खास प्रोटीन्स का सिक्रेशन में या सिंथेसिस में
मैन्युफैक्चर में हेल्प करेगा, जिसके वजह से कि वो प्रोटीन बनने के बाद कुछ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। क्लियर? ये जीन ये पूरा बना है न्यूक्लिक एसिड से, लाइक न्यूक्लियोसोम जो है हम उसको न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड से ही बना है ये। क्लियर? एंड दे आर ऑल्सो जीन्स आर कॉल्ड एज द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी बिकॉज ओवरऑल दे हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ये प्रोटीन बनाया और कैरेक्टर जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल किया, लेकिन यही तो कंट्रोल कर रहा है ना, मेन चीज़ यही सबका बाप है यहाँ पे। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो जीन बता रहा हूँ एग्जैक्टली सिंपल फॉर्म में, तुम इस टॉपिक में पढ़ोगे। एक टॉलनेस का जीन है, तुम सोचो टॉलनेस का जीन मतलब ये जीन जब भी होगा याद रखो पेयर में होगा। जीन्स ऑकर इन पेयर ऑलवेज। टॉलनेस का अगर मैं जीन कर रहा हूं तो वहां पे मैं ऐसा लिखूंगा कैपिटल टी कैपिटल टी। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये है टॉलनेस का पेयर, जीन पेयर या हाइट का। मैं सिर्फ टॉलनेस का क्यों बात करूं, मैं हाइट बोलता हूं, हाइट। क्लियर? मैं एक कैपिटल टी लिखा, एक स्मॉल टी लिखा। क्लियर? तो इसमें तुम दो चीज़ देख रहे हो। जीन में पेयर में आता है जीन और एक का दो पार्ट है। एक है डोमिनेंट जीन, दूसरा है रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन का मतलब क्या? डोमिनेंट जीन मतलब द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? एक ऐसा जीन जो डोमिनेंट हो। जीन तो पेयर में आएगा, लेकिन ऐसा जीन जो कि दूसरे को भी सप्रेस कर दे और खुद डोमिनेंट मीन्स अपना कैरेक्टर दिखाए। यहाँ पे वही हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। जब भी कोई डोमिनेंट जीन लिखते हैं ना हम लोग, वो कैपिटल में लिखते हैं। तो यहाँ पे डोमिनेंट जीन क्या है? कैपिटल टी मीन्स टॉलनेस। तुम सोच लो, सपोज तुम कंसिडर करते हो टॉलनेस। समझ में आया? मैं हाइट का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कैपिटल टी का मतलब टॉलनेस है और स्मॉल टी का मतलब ड्वार्फनेस है, छोटापन, बूटी। ओके? सो डोमिनेंट जीन क्या करेगा? ये अपने साथी जीन को सप्रेस करेगा और खुद को डोमिनेंट रखेगा, मीन्स अपना कैरेक्टर वो दिखाएगा। भले ही साथ में ये हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हर वक्त डोमिनेंट जीन को हम लोग कैपिटल में ही डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। क्लियर? ओके। अगर इस पेयर में कोई एक भी जीन डोमिनेंट रहा ना, तो उसका कैरेक्टर दिखाएगा। अ सिंगल डोमिनेंट जीन ऑल्सो कैन डिसाइड द कैरेक्टर। ऐसा भी हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? ये तो दोनों के दोनों डोमिनेंट है, टॉल होगा ही होगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी अगर डोमिनेंट हो गया ना, तो दोनों के दोनों तो ये डोमिनेंट अपना कैरेक्टर दिखाएगा। ये डोमिनेंट जीन तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, इसको समझना होगा, क्योंकि इसी के बेस पे पूरा चैप्टर है। क्लियर? ओके। दूसरा चीज जाते हैं। दूसरा है रिसेसिव जीन। रिसेसिव मतलब जो दब के रहेगा। क्लियर? जो दब के रहेगा, डर के रहेगा, जो कि ये छोटा टी है, तो ये डोमिनेंट है बोलने से इसका कैरेक्टर टॉल होगा, याद रखो। ये भले ही यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसका कैरेक्टर कोई नहीं देख पा रहा, क्योंकि इसको डोमिनेंट वाले ने दबा के रखा है। सो द जीन विच which is suppressed by the dominant one is called as recessive gene। और ये जो जीन है ना, ये अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। अगर इस जैसा दूसरा होगा, यानी स्मॉल टी होगा, तब जाके इसका कैरेक्टर दिखाएगा। स्मॉल टी मतलब बूटी होना, ड्वार्फ होना। तो इस कंडीशन में ही वो
अपना कैरेक्टर दिखाएगा. सो द जीन which can decide the appearance of an organism only in the presence of other identical gene. मतलब एक के जैसा दूसरा होगा, दोनों होने से ही जो काम देंगे उसको हम रिसेसिव मानते हैं. क्लियर? एंड दे आर ऑलवेज रिटन एज स्मॉल नंबर्स एंड ए सिंगल रिसेसिव जीन कैन नॉट शो द कैरेक्टर. दोनों के दोनों में से दोनों के दोनों रिसेसिव होने चाहिए. डोमिनेंट अगर एक भी होगा तो कैरेक्टर दिखाएगा, दो भी होगा तो गुड, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर एक रिसेसिव है तो कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, दो होंगे तब जाके दिखाएगा. क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, तो इतना तक तुम लोग देख लो. हाँ, एक और चीज़, एक लास्ट टॉपिक. एक टॉपिक है LLA. ये तो बुक में नहीं होगा, मैं बस सिंपल बता दे रहा हूँ. LLA. ओके, LLA मीन्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन. जीन है हाइट का, सपोज जीन है हाइट का, कैपिटल T स्मॉल t लिखा. इसका मतलब दोनों का हाइट का ही दो ठो फॉर्म है, टॉल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म. मीन्स ड्वार्फ. हम शॉर्ट नहीं बोलेंगे, टॉल और ड्वार्फ बोलेंगे. टॉल फॉर्म है, टॉल जीन है और ड्वार्फ जीन है. दोनों का अलग अलग है. एक ही जीन है तुम्हारा, हाइट का जीन, लेकिन दो फॉर्म हैं, टॉल फॉर्म और ड्वार्फ फॉर्म. सच काइंड ऑफ जीन इज कॉल्ड एज व्हाट? LLA. क्लियर? सच काइंड ऑफ जीन इज कॉल्ड एज LLA. ALLELE. क्लियर? शायद बुक्स में नहीं होगा, लेकिन सिंपल सा टॉपिक था तो मैं मुझे बता दिया ये टर्म. तो जितना बताया अभी इसको प्रॉपरली पढ़ो. डाउट रहेगा कल सुबह हम डिस्कस करेंगे. प्लीज़ वॉच द वीडियो. ओके, हैव अ गुड डे.